हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक टॉक्स विद यश। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट यश अग्रवाल। एंड ये एक एक्साइटिंग सीरीज है टेक टॉक्स विद यश। इसमें हम लेके आ रहे हैं लोगों को जिन्होंने एमसीए के डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक किया, लाइक निमसेट, सीयूटी, मास सीटी एंड अदर एग्जाम्स। एंड साथ साथ उन लोगों को लेकर है जिन्होंने इंडस्ट्री में डिफरेंट कंपनीज एंड आपके ड्रीम कंपनीज को भी क्रैक किया। तो काफी इंटरेस्टिंग सीरीज रहने वाली है, क्योंकि काफी कुछ इंफॉर्मेशन आपको इस सीरीज के हर एक एपिसोड से मिलेगा अबाउट डीएसए, डेवलपमेंट, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, मार्केट में क्या चल रहा है, सब कुछ का इंफॉर्मेशन आपको हर एपिसोड में एकदम भरपूर मिलेगा। सीरीज पे बने रहेगा, काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है। एंड आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा कि आप जानते हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड लेट्स बिगिन। Hello everyone, welcome back to the next episode of Tech Talks with Yash. Today we have Mr. Avish Mittal, who cleared NIMSA 2021 with an All India rank of 18 and is a graduate of NIT Trichy in 2024. And currently he is working as a software engineer at Amdocs. So welcome Avish to Tech Talks with Yash. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Mm, Yash. Thank you for coming. So before we begin with the Tech Talks, it would be great, Avish, if you could just give a background about yourself, from where did you complete your bachelor's and everything. Okay. So basically, I am Avish Mittal and I am from Shopur, Madhya Pradesh, which is a very small district in Madhya Pradesh. And I have completed my schooling, first of all, from a government college, government school actually. And then I moved to Kota for my IIT preparations. But unfortunately, I have given actually IIT exam two times, but unfortunately, I could not pass the exam. So at that time, I was very hopeless. So I thought that I should have to make some research and then start my career. So I thought to move in a government preparations like SSC and banking. So I moved to Indore. Simultaneously, I enrolled in Devi Ahilya Vishwavidyalaya for a BCA course as my bachelor's degree, and I thought I would start giving exam of banks or SSC. So in my second semester, my seniors came to my college and they told me about the future scope after BCA, which will we can do MCA. Okay. So after that, we have a choice of getting placed in top MNCs if we pursue in top engineering colleges. So I tried it, and I will tell you further more about this. Okay, great. That's all. So basically, it was just that seniors helped you and guided you. So be it tier two, tier three colleges, seniors also play an important role. Like they can give you idea about Yes, what yes, is going on in the industry, what you can pursue. So having yes. connections with the seniors is very important. Yes, it is very important because whatever you are suffering from right now, they are already suffered. Okay. Completely. So, whatever I am facing at that time was facing so much issues. I do not have any knowledge about any programming languages. I was struggling so much because I did not know of anything. Whatever I am doing, I just came to do government exam preparation. So I am not very interested in doing my bachelor's also. But at that time, they told me that there is a much scope in IT field in future. So you Yeah. must go to IT field, and they suggested me an institute which they were preparing, which is Jitendra Mishra Academy from Indore. Okay. So I prepared from there. I enrolled and I enrolled in fourth semester actually. So at that time, COVID also came. So that Okay. was a very tough time for me because everything's got closed, and I am worried that what I am doing because no exams are happening. College is also closed. Coaching is also closed. No exams are going on. What I will do? So at that time, our sir helped us too much. He started everything in online mode, and we started preparing for it. So after preparing for 20 months in that institute, I appeared in the exam and secured All India rank 18 in NIMSET and All India rank 17 in PIT MISRA exam. Oh, great. That is great. So from your story, it is very evident that you might fail in various exams, but that is not the end. Like
people get demotivated after failing one time in IMSET or CUT. But that's not the end. You have much more opportunities in life. You have other exams which you can clear. It is just that you have to be more aware of what is happening in the industry. You must talk to people from the same industry, and you will get Yes, idea yes, about yes. See, I learned from my mistakes as what let me tell you. After failing in IIT mains, even I have not cleared JEE mains two times. So I thought that two things I have learned that I do not have to worry and I have to move on continuously so that it. I Right. could because if I stop, I would never reach anywhere. Okay. Another Completely. thing is never hesitate to ask it out because even if you ask, then only you will get to know what are the new things. Okay. So I in currently also even someone gets irritated, I am keep asking doubts because it is my work and it is their work. After preparing from IIT, I realized that I did not have so much research without entering into the field. So बिना रिसर्च किए मैं किसी भी फील्ड में गया था पहले आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बिना रिसर्च के लिए आ गया हूँ और मुझसे वहां पे हो नहीं पाया था। एक्चुअली मुझे फिजिक्स से बहुत ज्यादा डर लगता था। Okay. आफ्टर दैट आई हैव रिसर्च अलॉट। बीसीए को मैंने एक अपना साइड ऑप्शन रखा था कि अगर मेरा एक गवर्नमेंट एग्जाम्स में नहीं होता है तो मैं बीसीए के थ्रू भी कोई जॉब ले सकता हूँ। बट इवेंचुअली चीजें ऐसी होती गई साथ के साथ, तो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती गई और लकीली आई गॉट एडमिशन इन एनआईटी त्रिची एंड इन एनआईटी त्रिची आल्सो वी वी got admission in the COVID time, lockdown time. Okay. So for the first year, we would not be able to reach our college. This is also another demotivation for us. So, but we move forward continuously as I told already, and eventually everything goes fine. या आपने बहुत बढ़िया बात बोला, स्पेशली जब आपने बोला कि नेवर हेजिटेट टू आस्क, बिकॉज like during the class time also people hesitate to ask doubt to teachers also. But if you don't ask, then how will you grow? How will you learn? Because you don't know everything. They know, they have crossed, they have learned so much in life. So it is very important that you ask, because you will eventually you will only learn and you will get to know everything. So never hesitate to ask. That is very important. Yeah. Yes. And like you spoke very good about your NIMSETs preparation strategy and all. Like how did you overcome from your IIT mains? You learned and you gave your NIMSET, especially during the demotivated. Everything was closed, but still you tried, and you got an all India rank of 18. So what was your strategy? Like how did you prepare? Everything you did from JMA also, or did you go for self study? What was your entire preparation journey? See, the जेएमए का ऐसा है ना, जेएमए में स्ट्रेटेजी केवल यही फॉलो होती है कि एक बार सर कट ऑफ करते हैं हमको बाहरी दुनिया से, लाइक मोबाइल। The biggest enemy is your mobile and the social media platform. So Yes. he insisted us to do a library sitting for the whole day. So हम सुबह जाते थे वहां पे 6-7 बजे हम जाते थे सुबह। पहले प्रार्थना आरती पूजा करते थे भगवान की। देन वी स्टार्ट रिवाइजिंग अवर कॉन्सेप्ट बिकॉज मॉर्निंग टाइम जो है ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो अपने ब्रेन की गेनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उस टाइम पे हम Best कोई time चीज to लर्न study. करते हैं तो वो हमको ज्यादा समय तक याद रहती है। और एग्जाम के दिन हम इस चीज की वजह से क्वेश्चन ना छोड़ें कि हमको फॉर्मूला याद नहीं है, तो ये बिल्कुल भी हमको Hmm. एक्सेसिव परमिसिबल नहीं था। तो इसलिए सुबह के टाइम तो हम केवल हमारे नोट्स ही रिवाइज करते थे। उसके बाद दोपहर में या फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट देते थे। or after even after class we start doing books. So lots of books I have solved for the maths reasoning quanta and maths reasoning computer and English. So after that we do self study, basically more than class time we go for self study, self analysis. And most important, after doing test you have to analysis yourself, what are the mistakes you have done during test, what are the problems you have faced during test, and what can be the questions you can do. But because lack of time or any other problem, you haven't achieved that score. So these are the things we analyzed the whole 20 months. And even and before appearing final exam, I have appeared a lot of times in my institute.
before any exam. So it would be easy. It would be another kind of test, but it is an actual test. So this would help me a lot. This was my strategy at that time. Only self study and motivation lectures of my Gurudev. Okay. So it was Yes, like the JMS created such an environment that people were more focused on studying, cut from outer yes, world. yes, So that was a great, yes, like people always talk about ACME Aspire study, but I guess JME has done a very good job, like because like cutting off is very yes, important because your distraction, social media is one of the major thing that distracts you from getting good marks in any exam. And plus yes, your self study and test analysis is very important, that which questions you could solve, which questions you could not solve. Analyzing that is very important yes. so that you can improve in your next test. One more thing, people say like that, why investing 20 months in such a little exam? I could suggest that why are you hesitating in doing any effort? Why are you hesitating by even you will be learn any something ना? Yeah, होता है ऐसा, लोग completely, बाग बोलते हैं कि इतना एफर्ट क्यों ही लगाना, जितना हो रहा है उतने से ही काम चल जाएगा, तो काम क्यों चलाना? व्हाई डोंट यू गिव योर फुल एफर्ट? So completely. I was enjoying those 20 months in the institute. I am मुझे सबसे ज्यादा ये खुशी है कि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हो गया था वहां जाके। सर के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मोबाइल से कट ऑफ मुझे हो गया था, बिकॉज आई वाज सीइंग इन माय ग्रेजुएशन दैट मैं बहुत ज्यादा टाइम अपना मोबाइल में इन्वेस्ट कर रहा था। तो 20 मंथ्स, जब एक होता है जेटलेट टाइम, अगर 21 डेज आप कोई चीज परफॉर्म करते हैं तो वो आपकी एक हैबिट बन जाता है। हाँ, अब अगर हम 20 मंथ्स के लिए अगर मोबाइल से कट ऑफ हो जाते हैं तो that would create an impact in our life. So that would be helpful for us. या कम्प्लीटली कम्प्लीटली, मतलब एक एनवायरनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो। Hmm. Right. या, तो अब उसके अलावा लाइक जब आपने एनआईटी त्रिची क्रैक किया तो काफी एक्साइटमेंट हुई होगी, नए कॉलेज, वन ऑफ द टॉप कॉलेज, ड्रीम कॉलेजेस रहती है स्पेशली इन निमसेट Yes, एंड yes, जेई yes. ऑल्सो। तो कैसा एनवायरनमेंट था Yes. त्रिची में, कल्चर कैसा था, एवरीथिंग? एक्चुअली पहले तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे 93 मिलेगा। मैं तो बस जेई मेंस से फेल होके गया था, तो मुझे लगा था कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज, एक्चुअली जेएनयू बीएचयू मिल जाता मुझे, तो मैं हैप्पी था। बट इवेंचुअली जैसे जैसे मैंने प्रोग्रेस की, मुझे टेस्ट में पहले मेरी नीचे से रैंक आती थी। ठीक है, माइनस में भी नंबर्स आए, धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंने इम्प्रूव किया। और फिर इम्प्रूव करने के बाद लास्ट में जब हमारे फाइनल टेस्ट होते थे, वहां जाके मैंने मतलब मल्टीपल टेस्ट दिए, उसके बाद धीरे धीरे रैंक इम्प्रूव हुई, फाइनली कॉलेज मिला। कॉलेज में जैसा कि मैंने बताया, हम कोविड टाइम पे हमारा कॉलेज में एडमिशन हुआ था, तो फर्स्ट ईयर तो हम कॉलेज गए ही नहीं। ओके। सेकेंड ईयर से हमने कॉलेज जाना चालू किया। और निमसेट के बाद एनआईटीज में एमसीए 3 इयर्स का होता है। तो सेकेंड ईयर से जब हम कॉलेज पहुंचे तो वो बिल्कुल डिफरेंट ही था हमारे लिए, क्योंकि वी आर नॉर्थ इंडियन पीपल्स एंड दिस इज कम्प्लीटली साउथ इंडियन। सो एटमोसफियर एंड फूड एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट फॉर अस। So it was very exciting कि one of the best institute we have pursued, and for 2 semesters we have gone through online mode, and even after 2 semester we are going college in third semester, so it would be very exciting for us. Also there are we encountered with many issues at that time, but together we make it, and last it fun. ओके, तो अभी जैसे क्या होता है कि व्हेन यू आर इन एमसीए ड्यूरिंग द सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर बेसिकली, योर इंटर्नशिप कम, कंपनीज कम फॉर इंटर्नशिप। So now you went directly from COVID time. So what was the situation like? Did companies come for Yeah. internship? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक माहौल होता है जो हमें कॉलेज में जाके ही मिलता है, वो माहौल हमने फेस किया ही नहीं था फर्स्ट ईयर में, जैसा कि हम Yeah, घर yeah, पे थे। तो हम खुद ही, हमें पता ही नहीं था कि हमें पढ़ना क्या है। उस टाइम पे हमारा सीनियर से भी इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ था, तो इतना गाइडेंस ही नहीं था कि स्टार्टिंग में हमको कैसे कैसे कंपनीज के लिए प्रिपेयर करना है। प्रिपेयरिंग फॉर निमसेट इज डिफरेंट, प्रिपेयरिंग फॉर कंपनीज टोटली डिफरेंट। completely, very different. सो यस, और मैंने जैसा कि बताया कि बैचलर्स में भी मुझे कोई नॉलेज नहीं था ज्यादातर प्रोग्रामिंग का, Hmm. तो मैं तो पूरा ही नया था बिल्कुल इस फील्ड में। तो जैसे ही कॉलेज में पहुंचे, वहां पे हमको पता चला कि सबसे पहले हमको बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक डीएसए करना है। डीएसए इज मस्ट एट एनआईटी तिरची, एंड वहाँ पे बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल है डीएसए का, सो वी हैव टू, एंड हम हमारे साथ साथ और भी स्टूडेंट्स थे जो दूसरे कॉलेजेस से आए थे, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अदर ऑल।
So they have like ICSE board, they have coding from ninth standards. Yeah, So meeting that their level is very challenging for us. सो धीरे धीरे हमें पता चला कि डीएसए करना है, वेरियस सोर्सेज हमको मिले, जैसे स्ट्राइवर का मैंने फॉलो किया था, जीएफजी और लीड कोड। फिर धीरे धीरे हमने आदत बनाई कि डेली प्रॉब्लम्स जो आते थे हमको लीड कोड हाँ, और जीएफजी पे उनको सॉल्व करना है। ओके, डेली शीट से हमको लगाना चालू किया। धीरे धीरे प्लेलिस्ट कंप्लीट किया। पहले हमको हमारा बेस बनाना है सारे डेटा स्ट्रक्चर्स में। उसके बाद हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड कॉन्टेस्ट हम स्किप नहीं करते थे। कॉन्टेस्ट हमको जरूर देना है, क्योंकि वो हमको रियल टाइम जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते थे, जो हमको कंपनी के टेस्ट में फील होता था। ठीक है, दैट कंप्लीटली, प्रेशर इज सेम, टाइम 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 बाउंडनेस इज सेम, एंड क्वेश्चन लेवल इज ऑल्सो सेम। सो दैट वुड हेल्प अस अलॉट रिगार्डिंग आवर कोर्स करिकुलम। सो हमको वो भी साथ के साथ चलाते रहना पड़ता था, ताकि एक गुड सीजीपी हम गेन कर पाए, तभी हम किसी कंपनी के लिए एलिजिबल होते थे। रिगार्डिंग इंटर्नशिप, इंटर्नशिप के टाइम पे कंपनीज आई थी, बट एट दैट टाइम, एज आई टोल्ड यू, आफ्टर कोविड देयर वुड बी a recession. So the companies are being very choosy. So या, they are not easily choosing our resume. So I got a chance in giving interview in 2 3 companies, like one is KLA, and another one I forgot the name. But I could not make it at that time. So at that time I got worried, because few of our my batchmates and my friends are got internship and I could not get. So that impact a little, but yeah, that hit my heart. And again, I am telling that I learned from my mistakes, and I started learning from scratch. Four things. Four things that I can tell you that fresher can be expected from a company, or company can expect from a fresher. Like he must be knowing a DSA first of all. Another is core concepts like OS, DBMS. ओके, Oops is very important. And sometimes for a specific companies like Cisco and all, their computer networks is important. ओके, Additionally, if you are another thing is project, you must do project, very good project you need to do, that could create an impact, as this is a time of AI and machine learning. So many students can do projects using AI. So companies are very specific, that they are very बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने लगे हैं आजकल, कि उनको ये पहचानना है कि ये प्रोजेक्ट पहले तो एआई ने बनाया है या बच्चे ने खुद बनाया है। तो उसके या, लिए बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग होने लगी थी, तो बहुत टाइट माहौल क्रिएट हो गया। तो एट द टाइम ऑफ इंटर्नशिप आई कुड नॉट मेक इट, बट एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट आई गॉट द चांसेस ओनली वन कंपनी एंड आई मेक इट, विच इज एमडॉस। ग्रेट। तो आपने सही बात बोला कि लाइक स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्ट की लाइक एआई की वजह से लाइक कॉपी पेस्ट इतना हो गया कि पता नहीं चल रहा कि यस, किसने खुद बनाया, स्टूडेंट ने बनाया। तो काफी यस, क्वेश्चन हो जाते हैं अब तो, इंटेंस हो गया है लाइक, जो इंटरव्यू जैसे होने लग गई है, मतलब ऐसा हो गया कि आपको A to Z पता होना चाहिए, आप कुछ भूल भी नहीं सकते कि आपने राइट, अपना राइट, प्रोजेक्ट में राइट। क्या किया क्या नहीं। अभी ऐसा हो रहा था, पहले पहले कोविड के पहले तो चलो, इंटरव्यूअर ने सपोज 10 क्वेश्चंस पूछे, आपने उसका 7 8 क्वेश्चंस के भी आंसर किए, दो में थोड़ा आप लैग कर गए, तो भी उनको चलता था। बट अभी इतना कंपटीशन हो गया कि 10 के 10 जवाब आपने सही नहीं दिए तो वो दूसरा बंदा चूज कर लेते हैं। इतना हाँ, ज्यादा एकदम कंपटीशन सही बात, क्रिएट हो गया। एकदम सही बात बोला। अगर 10 भी दे दोगे तो फिर भी एक ऐसा हो जाता है कि किसने अच्छे हाँ से वो, बोला, किसने क्या बोला। हाँ, हाँ, फिर डाइवर्सिटी हायरिंग का भी एक डिफरेंस हाँ। होता है। तो अभी जैसे बहुत बच्चों को डाउट होता है कि जो आपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाए, लाइक सबको पता है कि फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब इंक्लूड करनी है, बट प्रोजेक्ट हम्म। का आइडिया कहाँ से ले, किस टाइप के प्रोजेक्ट बनाए कि हाँ एक इम्पैक्ट पड़ सके रेज्यूमे में भी एंड अच्छे भी लगे अपने रेज्यूमे। सी इस चीज के लिए आपको है ना अपने सराउंडिंग्स पे ही ध्यान देना चाहिए कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। हमारे एनआईटी में ही कुछ बच्चों ने ऐसे प्रोजेक्ट बनाए थे, जो जैसे वो उनके टीचर्स के अंडर जो इंटर्नशिप करते हैं वो भी उनको आइडियाज देते हैं, और यू कैन फाइंड आइडियाज ऑन गिटअप। इट इज नॉट बीइंग टेल कि आपको पूरा प्रोजेक्ट स्क्रैच से बनाना है। कंपनी भी ऐसा नहीं बोलती कि आपको पूरा स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाना है। आप प्रोजेक्ट उठा भी सकते हैं, बट व्हाट न्यू यू हैव इम्प्लीमेंटेड इनटू इट। Okay, suppose you have cloned a project which is related to e-commerce. So suppose किसी ने प्रोजेक्ट डाला हुआ है, what are the enhancement you have done into it? Are you integrating any payment gateway into it, or are you integrating any AI feature into it?
So it ओके। would suggest any product according to your searches. So, ओके। and also whatever you are contributing in open sourcing, so this also makes impact in your resume. Uh, Along with projects, coding is also mandatory. So you have to give a contest, and whatever ranks you have achieved, you should mention it into your projects. Along with that, if you are able to do any certifications, like currently everything is moving to cloud. So if you are adding any of the cloud certifications, like a basic cloud practitioner certificate, which is AWS or AWS or GCP or Azure is providing. So if you are providing it, it would make yourself standalone from other ones. ओके, ग्रेट। तो आपने लाइक काफी कुछ इन्फॉर्मेशन बता दिया स्टूडेंट्स को कि लाइक क्या क्या करनी चाहिए, लाइक कोडिंग डेवलपमेंट, क्लाउड में, एआई में। तो मतलब काफी हेल्पफुल रहेगी स्टूडेंट्स को जो अभी फर्स्ट सेकेंड ईयर में एंड जो उनका प्लेसमेंट्स आने वाला है, अपने आपको प्रिपेयर कर सके। तो ये सब तो आपने बताया कि लाइक काफी कुछ है कि जो ऑन कैंपस इंटरव्यू में अपने को ध्यान में रखना है। अब इसे स्टूडेंट्स को जब डीएसए कर रहे हैं तो एक दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि कितने क्वेश्चंस करने, क्या स्टैंडर्ड रहता है, कितने कॉन्टेस्ट दूं, क्या आपने किया था और क्या एक आपको आइडिया लगा अपने कलीग से। ओके, सो बेसिकली मैंने ये पहले भी कहा है कि देर मस्ट नॉट बी एनी क्राइटेरिया ऑफ लर्निंग। सो आपको इस चीज पे ध्यान नहीं देना है कि मैं कितने क्वेश्चन करूं, कि मैं इतने पे आगे रुक जाऊं। वो आपको हमेशा एक लिमिटेड बना देगा। आप तब तक क्वेश्चन कीजिए जब तक आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं आ जाता है, या फिर उस टॉपिक की आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं हो जाती है, या आप उसमें कॉन्फिडेंट फील नहीं करने लग जाते हैं। लाइक हम चूज करते हैं स्टैक। सो हमने स्टैक पढ़ना चालू किया, स्टैक पढ़ते पढ़ते हमने क्वेश्चंस लगाए। अब हम देख रहे हैं कि डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हाँ मुझे माइंड में क्लिक कर पा रहा हूँ कि हाँ ये अप्रोच हो सकती है। इवन यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इट, बट हाँ आप अगर उसकी सही अप्रोच सोच पा रहे हैं, देन यू कैन थिंक कि हाँ ये मैं अब आगे होगा तो मैं कर लूंगा। इम्प्लीमेंटिंग इज अनदर थिंग, थिंकिंग ऑफ द सॉल्यूशन इज अनदर थिंग। सो रिगार्डिंग डीएसए, तो आप, डीएसए इज जस्ट लाइक मैथ्स विच इज लिमिटलेस। वो आप जितना भी कम करेंगे वो उतना कम है। तो आप, मैं यही कहूंगा कि डेली बेसिस पे आप जीएफजी और लीड कोड के क्वेश्चंस करते रहिए। कॉन्टेस्ट डेली देते रहिए, डेली क्वेश्चंस आपको करना है। अगर आप अपने आप में ही कॉन्फिडेंस फील करने लग जाए डीएसए के रिगार्डिंग। अगर किसी को फियर रहता है तो आप शीट्स भी रेफर कर सकते हैं, जो सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप आपको डेली प्लान्स देते हैं। तो आप, अगर आपको उनका सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं उनके। एंड मेक श्योर टू प्रिपेयर नोट्स। बेसिकली बहुत सारे एल्गोरिदम्स, क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स के थ्रू ही बन जाते हैं। तो अगर आप नोट्स प्रिपेयर करते हो और आप उनको डेली रिवाइज करते हैं, तो आपके दिमाग में वो चलते रहते हैं। तो वेन एवर यू सी द क्वेश्चन, यू जस्ट स्टार्ट एलिमिनेटिंग द पैटर्न्स। लाइक जैसे हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको देखेंगे कि हाँ ये स्लाइडिंग विंडो से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है तो वी विल eliminate it two pointer method. And if it is a graph question, then what can be the algorithms we can use. So there are many algorithms like Bellman-Ford algorithm, Dijkstra algorithm. So we can eliminate one by one, and eventually we will reach to one solution. Start implementing it. Do not go through optimized one initially. Start implementing brute force. See whatever redundant steps you are implementing. Try to avoid that. Try using various data structure which is taking less time complexity, and then you will get your best solution. And after submitting, if even if you have submitted code, don't think like that your solution is the best solution. Try to search into the solution that someone has, what other people have to. So it would give you broader aspect of thinking. So that would help a lot in doing DSA. सो मतलब आपने कंप्लीट डी से बता ही दिया लाइक कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए, एकदम मतलब इतना Yeah. शॉर्ट में कि लाइक कहाँ से बेसिक से एडवांस क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, कि ब्रूट फोर्स पे ध्यान दो ना कि एक बार में ऑप्टिमल या बेस्ट अप्रोच पे, एल्गोरिथम्स को ध्यान पे Yes. रखो। लाइक कंप्लीट आपने बता दिया। तो अगर किसी को भी जाननी है डीएसए कैसे करने है, तो वो इतना भी अगर आपका सुन लेना, तो आई गेस वो अपना डीएसए का जो फ्लो है वो एकदम अच्छे से मेंटेन कर पाएगा, अच्छे से कर पाएगा डीएसए। Yes. एंड जो कि Yes. आपने बताया कि एक लिमिट मत रखो अपने क्वेश्चंस पे कि 100 करनी है, 200 करनी है। अगर आपका 60 क्वेश्चन में भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा सब हो गया, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपके 500 में भी नहीं हुए Yes. तो फिर कहीं ना कहीं आपको अपने आप अंदर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे 500 में भी नहीं हुए, मेरे को और Correct. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। Correct. Correct. तो जब आपने एमडॉक्स के लिए बैठे आपने,
तो उसका क्या प्रोसीजर था, लाइक क्या क्या चीज उन्होंने पूछी, हाउ वाज द एंटायर प्रोसीजर फॉर गेटिंग इनटू एमडॉक्स एंड द कंप्लीट जर्नी करेंटली इन एमडॉक्स आल्सो। ओके। सो एमडॉक्स का ऐसा था कि हम उस टाइम पे रिसेशन टाइम था, वैसे ही बहुत सारी कंपनीज नहीं आ रही थी। तो हाँ। एमडॉक्स से हमको बहुत उम्मीदें थी। तो हाँ। फर्स्ट ट्विस्ट तो हमको एमडॉक्स के ऑनलाइन टेस्ट में ही देखने को मिला, जहां उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि हमको कोडिंग केवल सी प्रोग्रामिंग में ही करनी है। ओके। तो हम लोग सी प्लस प्लस में ही प्रोग्रामिंग करते थे पूरा। जावा भी थोड़ा बहुत पढ़ते थे। बट सी हम बिल्कुल इनिशियल फेज में पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेड आपको कोडिंग फंक्शनलिटीज मिलती है। हाँ। ऑल्दो इट इज अ मदर लैंग्वेज, बट वी नीड टू डू वेरी लाइक इन सी प्लस प्लस वी हैव यूज्ड एसटीएल लाइब्रेरीज. या। If we want to implement it in C, you have to write complete bunch of code ओके। manually. So it was very surprising for us at that time. So, but I have learned C also, and I had did certification also. So that helped me at that time. एंड उस टाइम पे मेरा ओटी क्लियर हो गया था, और दो क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, एंड साथ में रीजनिंग भी थी. आप ओके। ध्यान देना कि ऑनलाइन टेस्ट में कोडिंग क्वेश्चन के अलावा रीजनिंग भी आती है, वर्बल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. तो ये भी आपका मजबूत होना चाहिए, तभी आप ओटी क्लियर कर पाते हैं. और पैटर्न ऐसा था कि जिसने सारे क्वेश्चन किए हैं उनको ही केवल चांस मिल रहा था इंटरव्यूज के लिए. ओके। आफ्टर दैट, और मेरा इंटरव्यू ऑफलाइन हुआ था. तो बेसिकली दो राउंड हुए थे इंटरव्यू के. एक टेक्निकल राउंड हुआ था, अनदर वन इज एचआर. सो टेक्निकल राउंड में जैसे ही हम बैठे, तो वो भी अनदर ट्विस्ट था, क्योंकि दे आर आस्किंग पजल्स. सो while preparing for interviews there are 200 lump sum puzzles on GFG. So you have to prepare with them. ये सब चीजें हमको इंटरव्यू के टाइम पे पता चल रही थी कि ये पजल्स भी पूछ रहे हैं, बट हमने वो पजल्स जैसे हम तैयारी कैसे करते थे, हम के इंटरव्यूज लेते थे एक दूसरे के, पीयर इंटरव्यूज लाइक यू हर्ड अबाउट. सो ओके। टू प्रिपेयर अवर सेल्स. सो हम कॉन्टेस्ट तो हम लीड कोड वगैरह पे देते ही थे, बट फॉर प्रिपेयरिंग इंटरव्यूज हम अपने दोस्तों के आपस में इंटरव्यू लेते थे, विद इन अ फॉर्मल वे, नॉट जस्ट लाइक हंसी मजाक चल रहा है उसमें, ऐसा कुछ समझ नहीं. गया। ओके। एक दूसरे को प्रॉपर रेज्यूमे देते थे. वो रेज्यूमे से पहले क्वेश्चन पूछते थे, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड काउंटर क्वेश्चंस पूछते थे. तो जो हम इंटरव्यू में फेस करने वाले होते थे वो हम पहले ही तैयारी कर चुके होते थे. हमने पजल्स के बारे और प्रीवियस ईयर्स जो क्या क्या हुआ था वो भी हमने हमारे सीनियर से मांगा था, कि प्रीवियस ईयर्स आपके इंटरव्यूज कैसे कैसे हुए थे, तो वहां से भी हमको रेफरेंस मिला था कि हाँ, कंपनीज में पजल्स भी पूछी जाती है. तो हम वो पजल्स भी रेडी करके गए थे. तो वो मुझे बहुत हेल्प किया था, बिकॉज मेरा लास्ट इंटरव्यू हुआ था, शेड्यूल हुआ था सुबह 9-10 बजे, और शाम को 5 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ था. तो मैं पूरा वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो चुका था. और इंटरव्यू में, और इवेंचुअली सबसे ज्यादा पजल्स भी मुझसे ही पूछे थे, 3 पजल्स मुझसे पूछे थे, बट मैं सॉल्व कर पाया. एक बात और, बच्चों के मन में बहुत डर रहता है कि इंटरव्यूअर कैसा होगा, क्या होगा. इंटरव्यूअर कुछ नहीं, इंटरव्यूअर आपकी हेल्प करने के लिए वहां पे बैठा है. अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो आपकी हेल्प करेगा. अगर आपको उससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. वो आपको पहले कंफर्टेबल फील कराएगा, उसके बाद ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा. तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन टू हिम, फील फ्री टू टॉक हिम. एंड इंटरव्यू के टाइम पे भी उन्होंने कई मुझसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी बेस्ड हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछे थे. लाइक एक क्वेश्चन अभी मुझे याद आ रहा है, जैसे एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल पे पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. एंड नो एसक्यूएल आल्सो टैकल्स एसक्यूएल थिंग्स, बट हाउ, व्हाई वी आर नॉट एरेडिकेटिंग एसक्यूएल. तो मैंने उनको जवाब दिया था कि एसक्यूएल कंसिस्टेंसी फॉलो करता है, लाइक बैंक ट्रांजेक्शन वी वेयर वी हैव टू फॉलो कंसिस्टेंसी. सो वी कुड नॉट इरेडिकेट एवरीथिंग बिकॉज अनदर टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट. सो दिस टाइप ऑफ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के जवाब आपको तभी आएंगे जब आप टेक्नोलॉजी में उतरेंगे, जब आप प्रोजेक्ट खुद से बनाएंगे. आप उठाइए प्रोजेक्ट, वो ठीक है, पर उसके बारे में एटलीस्ट पढ़ लीजिए, टेक्नोलॉजीज पढ़ लीजिए, क्या है क्या नहीं है, क्या यूज किया है, क्यों यूज किया है, और उसके करस्पॉन्डिंग और क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है. क्योंकि अब इंटरव्यूज बहुत एडवांस हो गए हैं. पहले की तरह नहीं है कि थोड़े बहुत इंटरव्यूज में काम हो जाता है, थोड़े बहुत जो टॉप 100 क्वेश्चंस पढ़ लिए और काम हो गया. हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. सो दिस वाज माय इंटरव्यू. एंड आफ्टर दैट आई गॉट एन एचआर राउंड एंड आई गॉट द ऑफर. ओके। तो मतलब काफी चैलेंजिंग इंटरव्यू बोल सकते हैं, लाइक स्पेशली लाइक आपका डिले हो गया, इंटरव्यू काफी टाइम लग गया, फिर आपसे पजल्स भी पूछी, सी के बारे में भी आया, तो मतलब काफी एक चैलेंजिंग था, बट आपने क्लियर कर लिया. सो कुडोस टू दैट. एंड लाइक एक है कि थोड़ा नॉलेज सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में रख लो, ताकि कभी भी कुछ भी चैलेंज आए तो
टैकल कर सको। ऐसा नहीं कि जावा में ऐड कर रहे हो या सी प्लस प्लस में, सबके बारे में एक यस नॉलेज यस। रख लो, तो क्या है कि कभी भी कुछ भी हो तो आप कर सको सॉल्व। आपको ब्रॉडर थिंक करना है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करना है, आपको ब्रॉड वे सारी चीजें देखते चलना है कि हाँ टेक्नोलॉजी ये भी एग्जिस्ट कर रही है, सी भी है, सी प्लस प्लस भी है, जावा भी है। ये तो अभी बेसिक है, आजकल कंपनीज क्या कर रही है, इसके अलावा जो टेक्नोलॉजीज है अगर तुमको वो आती है तो हम हायर करेंगे, इस तरह के ट्रेंड्स भी चल रहा है। लाइक गोलैंग यू हैव टू नो, सी शार्प यू शुड लर्न। सो आपको सारी टेक्नोलॉजीज अप टू डेट रहना पड़ेगा आपको, अगर मार्केट के साथ चलना है तो। अरे अभी काफी एडवांस हो गया, सब कुछ ही आना पड़ेगा ना, वरना तो फिर बहुत डिफिकल्ट है इफ यू वांट नहीं टू गेट अ ऐसा जॉब। नहीं है, एवरीथिंग इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ फ्रेशर, बट फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव आपको मतलब टेक्नोलॉजी अभी जैसे जा रही है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि वेरी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप सोचो कि मैं केवल इतना लिमिटेड करके मैं क्रैक कर सकता हूँ तो आप फिर लिमिटेड ही रह जाओगे। आप अपने गोल या फिर आप अपनी पोटेंशियल का सही इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे, आप कहाँ पहुंच सकते थे, बट आप अपने आप को लिमिटेड रखो और आप यहीं रह गए। तो डोंट बी लिमिटेड। ओके, तो ये बढ़िया बात बताया कि एवरीथिंग भी मत करो बट लिमिट भी मत करो खुद को, लाइक करते रहो, राइट सीखते राइट। रहो ओवर द टाइम, सीखते जितना हो रहो। सके यस। सीखते रहो, ताकि जो मार्केट में ट्रेंड है, इंडस्ट्री में ट्रेंड है, वो उसके साथ आप फ्लो कर सको, गो विद द फ्लो, वो सब। जैसे एक चीज और मैं बताता हूँ, हमारी प्रिपरेशन के टाइम पे हमारे जो फ्रेंड्स दूसरे इंटरव्यू देखने जाते थे, जिसमें मान लीजिए हमारा नहीं हुआ, तो हम उनसे पूछते थे कि कंपनी ने क्या पूछा तुमसे। तो उनसे जो इंटरव्यू क्वेश्चंस उनसे पूछते थे उसके रिगार्डिंग भी हम लिख लेते थे, नोट डाउन कर लेते थे कि अच्छा ये क्वेश्चन हमसे अगर पूछा तो हम इसका ये रिप्लाई करेंगे। तो इससे ये हमको पता चलता है कि हाँ कंपनीज किस तरफ मूव कर रही हैं, क्या क्या वो क्वेश्चंस आजकल पूछ रही हैं। तो डिस्कशन बिटवीन योर फ्रेंड्स इज ऑल्सो वेरी गुड रिगार्डिंग दिस। सो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आपने सही बात बोला कि एक पीयर्स अगर अच्छे हो तो काफी हेल्पफुल हो जाती है, लाइक वेरी लाइक हेल्प। आप पीयर टू पीयर इंटरव्यू ले लोगे, आपको आइडिया मिल जाएगा, लाइक मॉक इंटरव्यूज भी हो गई वो, फिर पीयर आपको हेल्प कर देते हैं कि उनके इंटरव्यू में क्या पूछा, तो हैविंग अ गुड पीयर एंड सर्कल अराउंड यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो आपने ऑलरेडी सब कुछ बता ही दिया, लाइक कंप्लीटली डेवलपमेंट के बारे में, डीएसए के बारे में, अपना एक्सपीरियंस निमसेट, उसके बाद लाइक कोडिंग राउंड, सब कुछ बता दिया। फाइनल अगर कुछ टिप्स एक्स्ट्रा इसके अलावा अगर आप देना चाहो कोई भी स्टूडेंट को, स्पेशली एमसीए स्टूडेंट्स को, तो क्या हो सकता है वो? मेरा पहला टिप तो यही रहेगा आप लोगों की, जैसा कि मैंने बताया कि डोंट बी हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन। हम आप क्वेश्चन पूछना बिल्कुल बंद मत कीजिए, एंड डोंट सी सॉल्यूशन इमीडिएटली व्हाइल डूइंग डीएसए। कुछ बच्चे करते हैं हमसे नहीं हो रहा है हम डायरेक्टली सॉल्यूशन देख लिया, तो वो लर्न नहीं कर पाओगे, आप थोड़ा उसमें पचिए। एक शुरुआत में होगा आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 2-2 3-3 घंटे लग रहे हैं, पर इवेंचुअली टाइम विल डिक्रीज। सो दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर डीएसए। ओके सो फॉर द कोर सब्जेक्ट्स, सो यू शुड हैव शुरुआत में तो आपको क्या कंप्लीट पढ़ना है ताकि आपका मोस्टली जो चीजें हैं वो कवर हो जाए। बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप सारा कुछ एक साथ कवर नहीं कर सकते हैं, तो आप क्रैश जो कोर्स होते हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो होती है, आपने जो नोट्स बनाए हैं आपके वही हेल्प करेंगे इंटरव्यू के टाइम पे। और ये बात याद रखना, लास्ट टाइम की जो प्रिपरेशन है, बोलते हैं ना कि लास्ट में प्रिपेयर कर लूंगा तो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म में आपने जो गेन किया है अपने अंदर, वही आपके काम में आता है। जैसे अभी एग्जांपल दिया कि सी हमने पढ़ा ही नहीं था, बट हमने पहले पढ़ा था तो वो हमारे इंटरव्यू के दिन काम आ गया, ऑनलाइन टेस्ट के दिन काम आ गया, तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। फॉर कोर सब्जेक्ट्स लाइक दिस, फॉर कॉलेज प्रिपरेशन वो आपके साथ में चलते रहने चाहिए ताकि आपका सीजीपीए भी मेंटेन रह पाए, तभी आप किसी कंपनी में बैठ पाएंगे। और रेस्ट अदर थिंग्स, सॉफ्ट सॉफ्ट स्किल्स पे आपको भी काम करना चाहिए, लाइक योर स्पीकिंग स्किल्स। एक चीज और, बच्चे सोचते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो डू नॉट हेजिटेट। इंडस्ट्री में किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है, कोई ना कोई कभी भी हड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो इंटरव्यूअर के सामने भी डरने की जरूरत नहीं है कि आपकी इंग्लिश पे भी कोई बात आएगी। लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर। ओके, if you are able to deliver your thoughts, then you are very fine. ओके सो इस चीज की प्रिपरेशन भी आप अगर आप पीयर इंटरव्यूज अगर जैसे आप देते हैं तो वहां भी हो जाती है, तो आप वहां पे ट्राई कीजिए अपना बेस्ट देने का। तो इस तरीके की अगर आप अप्रोच फॉलो करेंगे तो यू विल डेफिनेटली बी इन द इंडस्ट्री। ओके, तो काफी बढ़िया टिप्स आपने बताया। बस एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर, ऑफ कोर्स लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर, बट जैसे कि इंटरव्यू में काफी बच्चों को, पर्सनली मेरे को भी है कि कितना बार अगर कोई स्टूडेंट हट अकला जाता है या कुछ
अटक जाता है बीच में बोलते बोलते, तो क्या है वो completely फाइन रहता है, कुछ दिक्कत नहीं होती है? Fine, completely fine, because interviewer knows that student is nervous and he is always trying to make him comfortable. So नर्वसनेस की वजह से अगर कोई हड़बड़ा रहा है, या फिर जब आप देखिए कि अगर आप अपने किसी सबऑर्डिनेट से बात करते हैं तो आप में अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है, कॉन्फिडेंस में आप प्रॉपर इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। बट अगर आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, अपने इंटरव्यूअर से बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा केयरफुल रहते हैं कि या फिर मैं कुछ गलत ना बोल दूं, या फिर इंटरव्यू के टाइम पे खासकर आप थोड़ा घबराए हुए रहते हैं कि एक हाँ। मेरी छोटी सी गलती की वजह से मेरा इंटरव्यू ना चला जाए। तो उस घबराहट की वजह से थोड़े बहुत अगर आप हकला जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। सो आपको मैंने पहले ही बोला कि इंग्लिश कोई इतना ज्यादा मैटर नहीं करती, मैटर करती है इंडस्ट्री में। बट इतना भी नहीं है कि आपको उसकी वजह से इंटरव्यू बाहर निकाल दे, बट अगर आप अपना जो डिलीवर करना चाहते हो कर पा रहे हैं, देन इट विल बी फाइन। ओके। मतलब इवेंचुअली नॉलेज एंड द वे यू कम्युनिकेट इज इम्पोर्टेंट। लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चल जाएगा, बट नॉलेज, हैविंग द करेक्ट नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। यस यस। सो थैंक यू आवेश, लाइक आपने आज काफी कुछ बताया, लाइक एवरीथिंग ही आपने बता दिया, सब कुछ जो कि एक स्टूडेंट को जानना चाहिए स्टार्टिंग की। लाइक अगर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है कोई, तो डिमोटिवेटेड मत हो, और भी अपॉर्चुनिटीज है। कॉलेज में आ रहे हो तो मे बी कॉलेज में नहीं कर पा रहे हो, बट स्टिल प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे सब इम्प्रूव होगा। अपने आपको लिमिट मत करो, लर्न करते रहो कंटिन्यूस, नॉट ओनली इन डीएसए बट इन डेवलपमेंट इन लाइफ ऑल्सो। लाइक सीखते रहो क्या चल रही है एनवायरनमेंट में, क्या चल रही है इंडस्ट्री में, तो सब कुछ अगर आप करते रहोगे तो आप एक अच्छे पोजीशन पे ओवरऑल आफ्टर योर कॉलेज गेट्स ओवर आप पहुंच ही जाओगे। इट्स फाइन। थैंक यू आविश अगेन फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर टुडे सेशन, एंड वी होप यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर। या, थैंक यू। तो आई होप आपको आज का एपिसोड ऑफ टेक टॉक्स विद यस काफी पसंद आया होगा, आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी फ्रॉम द गेस्ट। एंड अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम जरूर उसको सॉल्व करेंगे। एंड आप हमसे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम कहीं पे भी कनेक्ट करके आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टेक टॉक्स विद यश में। टिल देन, टेक केयर।